ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று காமிகா ஏகாதசி. இந்த ஏகாதசி மகாத்மியம் பிரம்மா நாரதற்கு கூறுவது போல அமைந்துள்ளது. இதற்கு பெரிதாக விரத கதைன்னு எதுவும் இல்லை. ஆனால் இந்த தினத்தில் செய்யும் கிருஷ்ண பூஜை மற்றும் இந்த ஏகாதசி விரத அனுஷ்டானத்தால் கிடைக்கும் பலன்களின் பட்டியலே மிக பெரியதாக உள்ளதுன்னு சொல்லலாம். இதிலிருந்தே நாம் இதன் மகத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த ஏகாதசி விரத மகிமை கேட்ட மாத்திரத்தில் வாஜ்பேயும் அஸ்வமேதம் செய்த பலன் கிடைக்குமாம் அப்படின்னு விரதம் அனுஷ்டித்தால் கிடைக்கும் பலனை சொல்லவும் வேண்டுமா என்ன? ஒரு முறை நாரதர் பிரம்மாட்ட கேட்கிறார், இந்த ஏகாதசி மகாத்மியத்தை பத்தி நீங்க எடுத்து சொல்லணும். இந்த ஏகாதசியின் பெயர் என்ன? இந்த தினத்துல யாரை வழிபட வேண்டும்? விரத வழிமுறைகள் என்ன? இதை அனுஷ்டிப்பதால் கிடைக்கும் நற்பலன்களை பத்தி நீங்க விரிவாக எடுத்து சொல்லணும் கேட்கிறார். பிரம்மா சொல்றார், ஓ நாரதா, இந்த உலகத்தின் நலனுக்காக தான் நீ கேட்கிற, நான் விரிவாக சொல்றேன், நீ கவனமாக கேளு அப்படின்னு சொல்றார். இந்த ஏகாதசி பேரு காமிகா ஏகாதசி. ரொம்ப புண்ணியம் வாய்ந்தது. இந்த ஏகாதசியின் மகத்துவம் சொல்லில் அடங்காதது. இந்த மகாத்மியத்தை வெறும்ன காதால் கேட்டாலே, சிரவணம் செய்தாலே, கேட்ட மாத்திரத்துல அஸ்வமேதம் வாஜ்பேயம் செய்த பலன் கிடைக்கும்னா இதனுடைய பெருமையை உணர்ந்து கொள்ளலாம். சங்கு சக்கர கதாபாணியாக உள்ள கதாதரன் திருநாமத்தில் ஸ்ரீதரன், ஸ்ரீஹரி, ஸ்ரீ விஷ்ணு, மதுசூதனன், மாதவன்ற திருநாமத்தால் போற்றப்படும் மகாவிஷ்ணுவை வணங்குவோருக்கு, அவரது பாதார பிந்தங்களில் சரணாகதியாக இருப்போருக்கு நிச்சயமாக பெரும் நற்பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த ஏகாதசியில் பகவான் விஷ்ணுவை ஸ்ரீதரனாக தியானித்து ஸ்ரீதராய நமகன்னு சொல்லி வழிபடணும்னு சொல்லப்படுறது. காமிகா ஏகாதசி தினத்துல மகாவிஷ்ணுவிற்கு செய்யப்படும் பூஜை ஆராதனை, இதனால் ஒருவருக்கு புண்ணிய கஷேத்திரமான காசியில், கங்கையில், புஷ்கரத்தில், நைமிச்சாரணத்தில் எல்லாம் போய் தீர்த்த ஸ்நானம் செய்தால் என்ன மகத்தான பலன் கிடைக்கும் இல்லையா? அதை விட பன்மடங்கு மேலான புண்ணிய பலன் கிடைக்குமாம். அது மட்டுமல்ல, பனி படர்ந்த கேதார்நாத்துக்கு போய் கேதார்நாதரின் தரிசனம் செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது, சூரிய கிரகணத்தின் போது குருக்ஷேத்திரத்தில் புண்ணிய நீராடினால் கிடைக்கும் பலன், பூதானம் செய்தால் கிடைக்கும் புண்ணிய பலன், ஷால கிராமம் கிடைக்கும் கண்டகை நதியில போய் நீராடினால் கிடைக்கும் புண்ணிய பலன், சிம்ம ராசியில் குரு பகவான் கோச்சாரம் செய்யும் காலம் சோமவார பூர்ணிமா தினத்துல கோதாவரி நதியில் நீராடினால் கிடைக்கும் புண்ணிய பலன், இது அனைத்தையும் செய்வதால் கிடைக்கும் பலன்களை விட இந்த காமிகா ஏகாதசி விரதத்தை அனுஷ்டிப்பதால் கிடைக்கும் பலன், அது மட்டுமல்ல, இந்த தினத்தில் செய்யும் கிருஷ்ண ஆராதனை, கிருஷ்ண பூஜை அவ்வளவு அதிகமான நற்பலன்கள் கொடுக்கக்கூடியது. இந்த காமிகா ஏகாதசி விரத பலனானது கோதானம் செய்த பலன். பசு கன்று ஈனும் போது ஒரு பக்கம் பசுவின் தலை, இன்னொரு பக்கம் கன்றின் தலை ரெண்டும் இருக்கிற போது பூ பிரதட்சணம் செய்தால் கிடைக்கும் அந்த நற்பலனுக்கு சமமானது கிடைக்குமாம். இந்த காமிகா ஏகாதசி தினத்தில் பகவான் மகாவிஷ்ணுவை ஸ்ரீதரன் என்னும் திருநாமத்தை சொல்லி வணங்குபவர்களுக்கு தேவர்களும் கந்தர்வர்களும் நாகர்களும் பன்னாகர்களும் மெச்சுவார்களாம், அவர்களை கொண்டாடுவார்களாம். பிறவிக்கடலில் மூழ்கி கொண்டிருப்போர், பாபம்ன்ற சேற்றில் சிக்கி தவிப்போரை கை தூக்கி விடுவது இந்த காமிகா ஏகாதசி விரதம் சொல்லப்படுது. காயத்ரிக்கு மேலான மந்திரம் கிடையாது, காசிக்கு மேலான தீர்த்தம் கிடையாது, ஏகாதசிக்கு சமமான விரதம் கிடையாது. இந்த கர்மம்ன்ற சேற்றிலே சிக்கி இருப்போரை தூக்கி விடுவது இந்த ஏகாதசி விரதம்னு சொல்லப்படுது. அதனால ஏகாதசியை போல நமது பாபத்தை போக்கக்கூடியதும் நம்மை தூய்மைப்படுத்திய கூடியதும் இந்த லோகத்திலேயே கிடையாதாம். நாரதா, இந்த ஏகாதசியை பற்றி சிறப்பா சொல்ற போது, இந்த ஏகாதசி விரத உபவாசம் இருப்பதால் கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியமானது இந்த புராணங்கள் அனைத்தையும் படிப்பதால் கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியத்தை விட பன்மடங்கு மேலானது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த காமிகா ஏகாதசியை முறைப்படி அனுஷ்டித்து கண்விழித்து மகாவிஷ்ணுவின் நாம ஸ்மரணமாகவே இருந்த அவரது மகிமையை விளக்கும் புராணங்களை பாராயணம் செய்பவர்களுக்கு யமவாதனையே கிடையாதாம். அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு என்னும் இந்த மாய சக்கரத்திலிருந்து விடுபட்டு பிறவா வரத்தை மறுபிறப்பு இல்லா அடைவர் என்பது நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது போன்றே பல தவ யோகிகள், முனி சிரேஷ்டர்கள்லாம் இந்த காமிகா ஏகாதசி விரத அனுஷ்டானம் செய்து பல உயர்ந்த நிலையை, மோட்சத்தை அடைந்துள்ளார்கள். அதனால நமது முன்னோர்கள் ரிஷிகள்லாம் காட்டிய நல்ல வழியை பின்பற்றி நாமும் இந்த தினத்தில் உபவாசம் இருந்து பகவத் ஸ்மரணமாக நாம பாராயணம் செய்து இதை அனுஷ்டிப்பது நல்ல பலன் தரக்கூடியது. இந்த தினத்தில் ஸ்ரீஹரியை துளசி தலங்களால் அர்ச்சிப்பவர்கள், ஆராதிப்பவர்கள் அவர்களது அனைத்து பாபங்களிலிருந்து விடுபடுவார்கள். தாமரையில தண்ணி போலன்னு சொல்லுவாளியா, அது போல நாம் இந்த பாபங்கள் தீண்டாமலேயே அதிலிருந்து விலகியே வாழலாம் இந்த ஏகாதசி மகிமையால் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த தினத்தில் ஸ்ரீஹரி
பகவானுக்கு பவித்திரமான ஒரே ஒரு துளசி தளத்தை சமர்ப்பித்தால் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் புண்ணியமானது 200 கிராம் தங்கம் மற்றும் 800 கிராம் வெள்ளியை தானம் செய்வதால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ அதற்கு சமமானது. முத்து, பவளம், மாணிக்கம், புஷ்பராகம், வைரம், வைடூரியம், கோமேதகம் போன்ற விலை மதிப்பில்லாத கற்களினால் செய்யப்படும் பூஜையை விட பவித்திரமான இந்த துளசி இலைகளால் செய்யப்படும் பூஜையானது பகவான் மகாவிஷ்ணுவுக்கு மிகுந்த பிரீத்தியை தரக்கூடியதாகும். இப்படி இந்த தினத்தில் துளசியால் அர்ச்சிப்போருக்கு இப்பிறவி பாபம் மட்டுமல்லாது முற்பிறவி பாபங்களும் நீங்கும். மேலும் இந்த தினத்தில் துளசியை வணங்குவோர் பூஜிப்போர் நோய் நொடிகளிலிருந்து நிவர்த்தி பெறலாம். அவர்களை நோய் நொடிகள் அண்டாது, பாபங்களெல்லாம் நீங்கும். எக்காலத்திலும் யம தர்மராஜனை கண்டு அஞ்ச வேண்டியதில்லை, யமவாதனை இருக்காது. இந்த தினத்தில் துளசி செடியை நடுபவர்கள் அல்லது துளசி பூஜையை தரிசிப்பவர்கள் வாழ்நாள் முடிவில் மோட்ச பிராப்தி பெறுவார்கள். துளசி தேவிக்கு இன்று நெய் தீபம் ஏற்ற அவர்களது புண்ணிய கணக்கை அந்த யம தர்மராஜனை சித்திரகுப்தனாலும் கணக்கிட இயலாதாம். பவித்திரமான இந்த காமிகா ஏகாதசி தினமானது பகவானுக்கு மிக மிக பிரீத்தியான பிரியமான தினம். முன்னோர்கள் இவ்வாறு பூஜித்தே ஸ்வர்க்கத்தை அடைந்து பாக்கியம் பெற்றனர். அதனால் இந்த தினத்தில் யார் ஒருவர் நெய் தீபம் அல்லது நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி கிருஷ்ணரையும் துளசி எண்ணெயையும் ஆராதிக்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களது பாபங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இறுதியில் சூரிய லோகத்துக்கு ஜெகஜோதியாக சென்றடைவராம். இந்த ஏகாதசியானது பவித்திரமானது மட்டுமல்லாமல் சக்தி வாய்ந்த நாள். இந்த தினத்தில் உபவாசம் இருக்க இயலாதோரும் இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றியும் இந்த விரத மகிமையை கேட்பதாலுமே முன்னோர்களுடன் ஸ்வர்க்கத்தை அடைவார்கள் அப்படின்னு பிரம்மதேவர் கூறினார். இதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தர்மராஜா யுதிஷ்டர் சொல்றார். ஹே யுதிஷ்டரா, பாவங்களை நீக்கி எண்ணில்லாத பலன்களை வழங்கும் இந்த காமிகா ஏகாதசியின் பெருமைகளை பிரம்மா தன்னுடைய புதல்வர் நாரதற்கு சொன்னபடியே நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஏகாதசி விரதமானது பிரம்மஹத்தி தோஷம், சிசுஹத்தி தோஷம் போன்ற கொடிய பாபங்களிலிருந்து நிவர்த்தி அளிக்கும் பேறு பெற்றது. அதனால் வைத்துக் கொண்டு நாம் தவறுகள் செய்யலாம் என்று ஒருபோதும் நினைக்க கூடாது. அறிந்தே தெரிந்தே கொலைபாதகம் போன்ற கொடிய பாபங்களை செய்வதற்கு எந்த சாஸ்திரத்திலும் மன்னிப்பே கிடையாது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். எவர் ஒருவர் இந்த பவித்திரமான காமிகா ஏகாதசியின் பெருமையை விவரிக்கக்கூடிய இந்த மகாத்மியத்தை பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் நம்பிக்கையுடன் கேட்கிறார்களோ அவர்கள் அனைத்து பாபங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு மகாவிஷ்ணுவின் வாசஸ்தலமான விஷ்ணு லோகம் எனும் வைகுண்டத்தை அடைவார்கள். இந்த தினத்தில் துளசி ஸ்தோத்திரங்கள் மற்றும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்வது பிரம்மஹத்தி தோஷத்தை போக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. நாம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம். ஓம் शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ओं नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मोवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यांश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णो नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापकं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुष्टुप्तता देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनस्रष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकं शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रताङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामा सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोदन्वत्प्रदेशेषु चिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयकरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये हरिः ॐ विश्वस्मै नमः विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवस्तानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विदाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा सविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोकिताक्षः प्रतर्दनः प्रबोधस्त्रिकगुप्ताम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः
रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिश्शुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतस्तानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंश्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्दाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारदीः अग्रणीर्ग्रामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलोदरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाकी वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः वोजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत् युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नकुशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् मकर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सकः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्तानदो ध्रुवः परर्दिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रणेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महीज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो
गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित् पुरुसत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो मकार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गगनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः शङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामणाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाकण्ड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामासामगः सामनिर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिकावीरः शौरिः शूरजनीश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिकाकरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाकविः सव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरणामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाकविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोतापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः एकोनैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरकाविशमशून्यो घृताशीरच्चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजोधन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोधुतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजनसशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृताशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्चत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरणगोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणर्बृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आशमनः शमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः
सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विन्नः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम यूजितशासनः शब्दातिगः शब्दसखः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यः श्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिका पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरकारक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाज्ञो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैकानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः रताङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमाली गतिशार्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदिशार्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदिशार्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धस्य शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमदीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखश्रान्ति श्रीधृति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्राकं दिशो भूर्मको दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि दातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितं पठेद्ययिच्चेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं ॐ नमः इति
अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नम इति। व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तु त ॐ नम इति। पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णो नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डितै नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति। ब्रह्मोवाच नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीसहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। इति श्री विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरिः ओम्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।